Hello students, good afternoon. Today we will discuss about the very important topic is nucleic acid. Nucleic acid is present in 11th as well as in 12th and also important for the NEET portion. Let's start about the nucleic acid. Nucleic acid this is the main component of the all living things. The nucleic acid we can say this is the genetic material because they carry the genetic character from the parents to the offspring. Okay. Let's start about nucleic acid, its discovery, its components, and other things and other concepts present in the nucleic acid portion. So we will discuss. Let's start. Nucleic acid. Nucleic acid. First thing, discovery. Discovery of the nucleic acid. Discovery of nucleic acid. First of all, nucleic acid was discovered by the Friedrich Micher from the nuclei of pus cell in 1869. F. Micher from nuclei of pus cell and called it as nuclein. Is that clear? Second question is that why nucleic acid is called nucleic acid? Nucleic acid. Nucleic acid. Nucleic acid is called nucleic acid because it is present in the nucleus of the cell and its chemical nature is acidic due to the presence of a special type of acid is called phosphoric acid. Let's see. This is the cell and this is the nucleus. We all know that about the nucleus. Nucleus contain a special material called chromatin fibers. Chromatin fibers. Chromatin fibers are also called chromosome. Okay. This is the nucleus. This is the nucleus. The presence of the nucleic acid, or we can say the location of the nucleic acid, is nucleus. Means the term nucleic represent its location, and the acid, it is the chemical nature of nucleic acid. It is the chemical nature. That is acidic. Okay. That's why it is called nucleic acid. It is called nucleic acid. I hope you understand about the discovery and the why it is called nucleic acid about these biomolecules. Okay. The nucleic acid is the macromolecule. Why it is called macromolecule? Molecules are of two types. One type is micromolecules and second one type is macromolecules. Micromolecules are those molecules that are small molecules. We can say the micromolecules. We all of these calculate the molecular mass, and the macromolecules are formed by the micromolecules. Means they are the polymer of the monomers, or they are the polymer of the small molecules. So we can't easily calculate their molecular mass. Okay. Then next topic in the nucleic acid, we will discuss about the components of the nucleic acid. Let's see. Components of the nucleic acid. Components of nucleic acid. Nucleic acid is composed of three components. First thing is a pentose sugar. That means 5 carbon sugar. 5 carbon sugar. Is that clear? Second thing is nitrogenous base. And third one is
phosphoric acid. Phosphoric acid. Okay. Pentose sugar is also are of two types. Number one is ribose sugar, and second one is deoxyribose sugar. And the nitrogenous base is also are of two types. Number one is purines, and second one is pyrimidines. Purines are adenine and guanine, and it is denoted by A and G. Okay, pyrimidines are of three. Number one is thymine. It is denoted by capital T. Cytosine, denoted by C, and uracil is denoted by U. In the nucleic acid, total nitrogenous base is only 5. That is adenine, guanine, thymine, cytosine, and uracil. Okay. And third one is the phosphoric acid. That is as 3PO4. This is present in both DNA and RNA. And next topic we will discuss about the conceptual concept about the nucleoside and nucleotide. Okay. Concept of nucleotide and nucleoside. Concept of nucleoside and nucleotide. Nucleoside, that means we can discuss already about components. There are three components. First one is pentose sugar, second one is nitrogenous base, and third one is phosphoric acid. When the pentose sugar is associated with nitrogenous base, then the component is formed, or we can say then the structure is formed, is called nucleoside. And these all three components, that is pentose sugar, phosphoric acid, and the nitrogenous base, form the structure. This is called nucleotide, and nucleotide is the monomer of the nucleic acid. Okay, then see nucleoside. Means the nucleoside, this is the composed of nitrogenous base, or we can say pentose sugar plus nitrogenous base. Okay, मीन्स पेंटोज शुगर में दो शुगर मैंने बताए हैं, एक तो राइबोस शुगर बताया है और एक डीऑक्सीराइबोस शुगर बताया है, और नाइट्रोजनस बेस में मैंने 5 नाइट्रोजनस बेस बताए हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। इनमें से नाइट्रोजनस बेस यानी कि नाइट्रोजनस बेस कोई सा भी हो सकता है और पेंटोज शुगर कोई भी हो सकता है। ये जब आपस में जुड़ेंगे देन दे फॉर्म द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। इज दैट क्लियर? वी कैन डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर। देखते हैं इसको कैसे होता है। पेंटोज शुगर में दो मैंने शुगर बता रखी हैं ऑलरेडी, एक तो मैंने बताया है राइबोस शुगर और एक बताया डीऑक्सीराइबोस शुगर। पहले दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंड देन उसके बाद जो है इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। देखिए and this one is OH is here also, OH इधर कर लीजिए या इसको ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे OH कर लीजिए। This is the first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon and 5 carbon. First carbon, second carbon, third carbon and fourth and fifth. These are two sugars, that is ribose and this is the deoxyribose. This is the ribose
and this one is deoxyribose. Deoxyribose. This is present in the RNA and this is the present in the DNA. Okay. This is the structure of the ribose sugar. When the ribose sugar or any pentose sugar means deoxyribose sugar also associated with the nitrogenous base, then the structure is formed. It is called nucleoside. देखिए क्या होता है, जब मैंने कहा है कि यहाँ पे कोई सा भी जोड़ सकते हो, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या होता है, कार्बन नंबर 1 से जोड़ेंगे. मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे हमने ए जोड़ दिया, ए फॉर एडिनिन. ओके, तो अब जो स्ट्रक्चर मिला है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. ओके, तो यहाँ पे देखिए दिस इज द न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड. अब यहाँ पे एक बॉन्ड भी फॉर्म हुआ होगा. सीधी सी बात है भाई, ये हमारा शुगर है और ये यहाँ पे बेस है, इसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है. इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो ये स्ट्रक्चर जो मिला है, ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. ओके, अगला इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड. यहां पे लिख देते हैं न्यूक्लियोटाइड. When all these three components are joined together to form the structure is called nucleotide. Means pentose sugar plus N base that is nitrogenous base and the phosphoric acid. Okay, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा न्यूक्लियोटाइड. अब यहां पे होता क्या है, फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा कहां पे, तो फास्फोरिक एसिड जो है हमारा कार्बन नंबर 5 से जुड़ेगा. मीन्स द फास्फोरिक एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय द शुगर एट द पॉइंट ऑफ कार्बन नंबर 5 लाइक दैट. अब यहां पे क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसका OH लेके हम निकाल देंगे वाटर. जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहां पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. देखिए कैसे, यहां से वाटर को हटा दे रहे हैं, वाटर को हटा दिया है और हटाने के बाद हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा. इसको आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से. तो ये हमको एक स्ट्रक्चर मिलेगा पूरा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. ओके, अब यहां पे ये स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियोटाइड. अब इसको लिख देते हैं न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड हो गया. अब होता क्या है, हर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का एक पर्टिकुलर नेम होगा. अब जैसे यहां पे समझ लीजिए, अगर मैंने यहां पे मैंने लिया हुआ है राइबोस शुगर. ओके, राइबोस शुगर जो है एडेनिन से जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे एडिनोसिन. ठीक है, अब सिंगल फास्फेट जुड़ा हुआ है तो सिंगल को यानी कि इसको बोलते हैं मोनो. यहां पे लिख भी देते हैं, यानी कि 1 जब होता है उसको मोनो बोलते हैं. एंड 2 होंगे तो उसको डाई बोलेंगे, 3 होंगे तो ट्राई बोलेंगे, 4 होंगे तो टेट्रा बोलेंगे, एंड सो ऑन. इज दैट क्लियर? In this compound or in this structure only have the single phosphorus. That's why it is called nucleotide, or we can say adenosine monophosphate. Adenosine monophosphate. ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर मिल जाता है हमको न्यूक्लियोटाइड का. अब ये कॉमन तो न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन इसको स्पेशली नाम अगर देखेंगे तो हमको मिल जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब अगर यहाँ पे हम लोग एक फास्फेट ग्रुप और ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोल देंगे इसको. ठीक है, अगर हम एक और फास्फेट ग्रुप लगा दें तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा हमारा. ठीक है, तो आपने सुना भी होगा एटीपी जो है, एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है, तो ये हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब ये कैसे बनते हैं, ये हमारे रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ते हैं इसको, चाहे प्लांट रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनिमल रेस्पिरेशन हो. स्पेशली प्लांट रेस्पिरेशन में, प्लांट फिजियो के पोर्शन में इसको काफी डिस्कस किया गया है, तो उसमें देखते हैं इसको. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हो गया है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ओके, लेट्स सी. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. Nucleic acid. There are 2 type of nucleic acid. One is DNA and second one is RNA. One is DNA and second one is RNA. आप सबने सुना होगा DNA और RNA दो हमारे न्यूक्लिक एसिड टॉपिक टाइप्स होते हैं. DNA जो है
means DNA is the genetic material. Genetic material means the material or means the substances that carry the information from the parents to the offspring. They are called the genetic material. RNA जो है, RNA भी genetic material है, but the RNA is not the genetic material in higher organisms. Is that clear? RNA is genetic material in some viruses like HIV virus. HIV virus contain the genetic material is RNA, and tobacco mosaic virus यानी कि TME virus is also contain the RNA is the genetic material. ठीक है, means but the DNA is only the genetic material in higher organisms as well as in plants and other cattle and other organisms like बैक्टीरिया. ठीक है, तो इन सब में जो है डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है. आरएनए पाया जाता है बट आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है. ठीक है, तो ये है कहानी इसकी. अब देखिए क्या होता है कि आरएनए जो है, आरएनए कहां कहां पाया जाता है? ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स. ओके, बट not a genetic material, but it is not genetic material except viruses. अब यहां पे एक चीज और भी है, हर वायरस में नहीं होता है, सम वायरसेस. ठीक है, कुछ वायरसेस में क्या होता है जो है आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, सब में नहीं होता है. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जिन वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उनको हम आरएनए वायरसेस कहते हैं, और जिन वायरसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उनमें हम क्या बोलते हैं? डीएनए वायरसेस कहते हैं. लेकिन वहां पे क्या होता है वायरसेस केस में, मींस इन द वायरसेस ओनली वन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, दोनों पाए नहीं जाते हैं, डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं मिलते हैं वहां पे. ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, डीएनए जो है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. अब डीएनए के केस में क्या देखते हैं कि डीएनए जो है हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, कुछ वायरसेस को छोड़ के, क्योंकि कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है. ठीक है, जैसे मैंने नाम लिया था यहां पे अभी एचआईवी का, एक्सेप्ट वायरस लिखा हुआ ना, जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं होता है लेकिन कुछ वायरसेस को छोड़ के. तो वो कौन से वायरसेस हैं? देखिए एचआईवी है एक, तुम्हारा एचआईवी है. अभी जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस, उसमें भी जो है आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. टीएमबी होता है, तो वो मोज़ेक वायरस, दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस. तो इस तरीके से ये जो वायरसेस हैं इनमें जो है आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, इसमें डीएनए पाया नहीं जाता इसमें. अब होता क्या है, डीएनए जो है हर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है एक्सेप्ट दीज वायरसेस एंड अदर मेनी वायरसेस हैव द आरएनए द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो जिन वायरसेस के अंदर आरएनए पाया जाता है उनमें डीएनए नहीं पाया जाता है. ठीक है, तो क्या होता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, is the genetic material in all organisms except some viruses. ठीक है, ये कहानी है. अब इसके थोड़े कंपोनेंट पे नजर डालते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. Structure of DNA. Before the structure of the DNA, we will discuss about the components, and after that we will discuss about the structure. First component is pentose sugar, and pentose sugar is deoxyribose sugar. Is that clear? Second is nitrogenous base. Nitrogenous base is already discussed, that is purines and pyrimidines. In the DNA, purines is only two types. Number one is adenine and second one is guanine. And in the pyrimidines is thymine and cytosine. Uracil is not present in the DNA. Okay, adenine and guanine, and pyrimidine means thymine and cytosine. Is that clear? And third one is phosphoric acid. That is H3PO4. By this acid, the component or the chemical nature of the nucleic acid
इज एसिडिक इन नेचर। ओके, तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। अब इनको थोड़ा सा देखते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, तो और चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, इसको पहले थोड़ा रफ कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, we all know that the DNA is the polymer of nucleotide. We can say this is the polymer of nucleotide. ओके, तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे और एक चेन बनेगी तो उसको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और वी कैन से डीएनए इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अच्छा, एक दो चीजें और है यहाँ पे देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो है मींस डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। ओके, कैसे बताएंगे इसको देखिएगा। सबसे पहले एक कंपोनेंट लेते हैं, हाथ से देखते हैं। यह है ऐसे, ये हमारा मान लीजिए पेंटोज शुगर हो गया। पेंटोज शुगर में मैंने यहाँ पे एडेनिन लगा दिया। ओके, यहाँ पे मैंने लगा दिया है फास्फोरिक एसिड, जो कि इस तरीके से पी हो गया। यहाँ पे ओ लगा देंगे, नीचे ओ एच कर देंगे, इधर भी ओ एच कर देंगे। अब यहाँ पे ओ एच कर देंगे और यहाँ पे एच लगा देंगे। ये हमको एक न्यूक्लियोटाइड मिल गया है। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। अब क्या होता है, कई सारे जुड़ते चले जाएंगे तो एक चेन बना लेंगे। इस चेन को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखिए कैसे जोड़ेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड, CH2OP and this the phosphoric acid, इस तरीके से। यहाँ पे कुछ भी लगा लीजिए, ग्वानिन लगा दिया मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पर मैं यहाँ पे चेन को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, इस तरीके से। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे। द OH of the first nucleotide means at the carbon number 3, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड कार्बन ऑफ द फर्स्ट nucleotide means the third carbon of the first nucleotide contain OH, and the second nucleotide contain the phosphorus or phosphate group at the carbon number 5. Okay, means the OH of the phosphoric acid and OH of the sugar of the first nucleotide means the H and the OH is released to form the water molecule. Is that correct? And form the bond is called phosphoester bond. Means this is the phosphoester bond. This is the phosphoester bond, and this is the also phosphoester bond. Means this one and this one, यानी कि सॉरी, एक तो फास्फोएस्टर बॉन्ड ये हो गया, एक तो फास्फोएस्टर बॉन्ड ये हो गया, दो फास्फोएस्टर बॉन्ड हो गए, तो दो को हम बोलते हैं डाई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फास्फोडाईस्टर बॉन्ड। फास्फोडाईस्टर बॉन्ड, ठीक है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बनता है हमारा फास्फोडाईस्टर बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है, ये वाले जो बॉन्ड हैं, इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक, पीछे बता भी चुका हूं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये एन ग्लाइकोसिडिक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये हमको एक सीधा सा स्ट्रक्चर मिल गया है, इसको और जोड़ते चले जाइए नीचे तक। तो यहां से देखेंगे आप कि कार्बन नंबर 5 से स्टार्टिंग हुई है, कार्बन नंबर 5 से स्टार्टिंग हुई है, मींस कार्बन नंबर 5 पे हमारा फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको 5 डैश लिखते हैं या 5 प्राइम भी बोलते हैं। एंड चेन इज एंडिंग एट द OH, दैट्स वाई यहां पर हम 3 प्राइम लिखते हैं या 3 डैश लिखते हैं। मींस द DNA इज फ्रॉम द 5 to 3 प्राइम और 3 to 5 प्राइम। ओके, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द DNA। एंड उसके बाद सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फास्फेट जोड़ दीजिए, उसके बाद शुगर जुड़ा हुआ है तो शुगर जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद हमारा फास्फेट लगा हुआ है, फिर से फास्फेट लगा दीजिए, फिर शुगर जुड़ा हुआ है, फिर शुगर जोड़ दीजिए, फिर इसके नीचे फास्फेट आएगा, फास्फेट लगा दीजिए, इस तरीके से आप नीचे लगा दीजिए शुगर, इस तरीके से चेन को लगाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, शुगर से ही हमने कोई भी बेस लगाना है, नाइट्रोजन बेस लगाना है, यहाँ से हमने G लगा दिया, यहाँ पर हमने C लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर हमको मिल गया है, ये हमको मिल गया है एक स्टैंड का, यानी कि सिंगल स्टैंड का मिल गया है। और जो नेक्स्ट स्टैंड मिलेगा वो इसका जस्ट अपोजिट स्टैंड होगा, मींस आइडेंटिकल एंड अपोजिट, ठीक है। तो ये हमारा DNA का स्ट्रक्चर था। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज वाटसन एंड क्रिक मॉडल।
इसको जो है स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द 11th 12th एंड आल्सो फॉर नीट। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।